First of all, good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the one of the important element of directing, that is motivation. You know very well what is motivation. Motivation is a process of stimulating people to action to achieving desired goal. It is a process which begins with a psychological need or deficiency which triggers behavior or drive that is aimed at a goal or incentive. In the last video, we also discussed the very important theory related to the motivation, that is Abraham Maslow need hierarchy theory. In this theory, we understand that there are basically 5 needs of human being: basic physiological needs, safety and security needs, social needs, esteem needs, and self-actualization needs. With the study of need hierarchy theory of Maslow, we understand which kind of incentive provided by the management to the particular employees to motivate them. अगर हमें किसी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो उसे किस तरह का मोटिवेटर प्रोवाइड किया जाए, ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ने हमें बेसिकली समझाने की कोशिश की है. इफ़ any worker or people of organization acquire the basic physiological needs, then they only motivated by the safety needs. They cannot be motivated by basic physiological needs. यानी हम उसको बार बार बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करके उसको फुलफिल करके उसको मोटिवेट नहीं कर सकते. बिकॉज यू नो वेरी वेल, a person moves to the next higher level needs only when the lower level needs is satisfied, and a satisfied need can no longer motivate a person. Only next level higher need can motivate a person. It is one of the assumption of Maslow need hierarchy theory. So today we will discuss the important part of motivation, that is motivator. You know very well what is motivator. Motivator is a techniques used to motivate people in the organization. For example, pay, bonus, recognition, praise, etc. You know very well, every organization motivates their employees with the help of motivator, and such kind of motivators can also be called as incentive. So there are basically 2 types of incentive, the financial incentive and non-financial incentive. So today we will discuss the incentive, that is motivator provided by the organization to its employee to motivate them. Because motivation is a process starting with keeping a person at work in our organization, and it is something which moves the person to action and continues him in the course of action already initiated. And also we know that in the motivation process, the first of all, any person unsatisfied need of an individual create tension and which stimulate his drives. Thereafter, these drives generate a such behavior to satisfy such needs, and when the need is satisfied, the individual is relieved of tension. So basically जो वर्कर होता है या पीपल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ वर्क करता है, और उसे हम अगर काम करवाना मीन्स द मोटिवेशन ब्रिज द गैप बिटवीन द एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क. यानी काम करने की योग्यता होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट काम करने की इच्छा भी होना ज़रूरी है. यानी आप काम दिल से करें, दिमाग से ना करें. ओके, सो you know very well motivation is a psychological phenomena. और टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के इस टॉपिक पे हम मूव करते हैं कि दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेटर विच आर प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉय. द बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. एज यू नो what is financial incentive? Those incentive which are in direct monetary form or measurable in monetary terms and used to motivate employees for better performance. जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को
ऐसे मोटिवेटर्स प्रोवाइड करता है या ऐसे इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जिससे हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, यानी कि मनी के फॉर्म में। मनी में मेज़र करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द इंसेंटिव इन मॉनेटरी फॉर्म विच कैन ईजली मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, बाय विच द कंपनी wants to motivate their employees. Some of the important financial incentive are listed below. What is the first example? That is a pay and allowances. You know very well. There are various kind of pay provided by the organization to its employee to motivate them, and this pay and allowances as additional payment to its employee with their basic monetary incentive. That is DNS allowances, house rent allowances, हाइक एंड इंक्रीमेंट्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता मिलता है, भत्ता बोलते हैं अलाउंसेस को। तो DNS अलाउंस मतलब इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देती है। हाउस रेंट अलाउंसेस इसलिए प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं और किसी दूसरे सिटी से आके यहाँ रह रहे हैं, तो बेसिकली आप किराए के मकान लेकर आओगे, उसका रेंट दोगे, तो कंपनी भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करती है ताकि आप ईज़िली उस घर का रेंट पे कर पाओ। उसके लिए समथिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, वो आपके रेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको हाइक्स, इंक्रीमेंट प्रोवाइड करती है। सो दीज आर कैटेगराइज इन द पे एंड अलाउंसेस। द सेकेंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव. It is a very important and common incentive, and this kind of incentive already discussed in the chapter number 2, the scientific techniques of management, that is a differential piece wage rate system. You know very well कि उसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि जो भी एम्प्लॉइज़ अपने टारगेट को कंप्लीट करता है या टारगेट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है, तो उसको हाई रेट या स्टैंडर्ड रेट का वेजेस प्रोवाइड करते हैं. सो ये भी एक तरह का इंसेंटिव होता है, रिवॉर्ड होता है जो एम्प्लॉइज़ अपने जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करता है. In this incentive, rewards are given to employees as a percentage of sales achieved. Its advantage is that reward is directly related to the performance. Okay. The third one is bonus. It is a one-time reward for high performance. Bonus may be paid in cash or kind over and above the salary. Performance bonus, 100 attendance bonus, festive bonus. जब आप कंपनीज़ में काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो such kind of bonus provided by the organization to motivate them. जनरली इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना होता है ताकि आप बिज़नेस के साथ अटैच रहें, बने रहें. और सच काइंड ऑफ बोनस को आप लोग जानते हैं परफॉर्मेंस बोनस के रूप में. 100% अटेंडेंस बोनस अगर आपको मिलता है, फेस्टिव बोनस मिलता है. द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. वाइल यू सॉल्विंग द पार्टनरशिप क्वेश्चन, then you feel that some of the practical problem related to this situation, कि in this situation we admitted as new partner of our manager, यानी हम अपने मैनेजर को ही क्या कर देते हैं, पार्टनर बना देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं. यानी हम उसको किस तरह का इंसेंटिव दे रहे हैं, वी प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू देम. क्या अब उसे सिर्फ सैलरी पे पर निर्भर नहीं रहता, उसे प्रॉफिट शेयरिंग, जितना प्रॉफिट लेकर आएगा उतने से उसका शेयर डिसाइड कर देगी. इट मीन्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेज. दिस इज इन द एडिशन टू देयर वेजेस एंड सैलरी विच मोटिवेट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर. द नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप इन स्टॉक ऑप्शन. ये आप लोग पढ़ोगे कंपनीज में व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन अकाउंटेंसी चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर. तो इट इज़ अ वेरी बेसिक कॉमन टेक्निक्स adopted by the various companies to motivate their employees, that is co-partnership in stock option. इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, वो अपने शेयर को ऑफर्ड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को एट अ डिस्काउंट रेट विच इज़ जनरली लोअर देन द मार्केट प्राइस. तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन, दैट इज़ को पार्टनरशिप. कि कंपनी आपको क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है. मार्केट में अगर आप एज अ पब्लिक उस शेयर को खरीदोगे तो 1000 का पड़ेगा, बट अगर आप खरीदोगे तो यू कुड परचेज दिस काइंड ऑफ शेयर एट 900, एट 800. तो आपको 200 और 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है. ये आपको सिर्फ इसीलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस. सो सच काइंड ऑफ इंसेंटिव कैटेगराइज अंडर द फाइनेंशियल इंसेंटिव. In this system, employees are offered share of the company at a price lower than the market price. This
gives a feeling of ownership to the employees, which motivates them to improve performance and profit of the company. The fourth example of financial incentive, that is retirement benefits. You know very well, retirement benefits is a much more attraction point for the employees to motivate them, and it is a very important scheme for those employees who cannot forgive their job, left their job due to the small reasons. जैसे हम देखते हैं कि छोटा मोटा कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो हम जॉब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक रिटायरमेंट बेनिफिट एक ऐसा तरीका है ना जिससे हम लेबर टर्नओवर को कम करते हैं, एज वेल एज एब्सेंटिज्म जो होता है वो भी कम होता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि आपको इसी कंपनी में काम करना है, रिटायरमेंट तक काम करना है, क्योंकि इस कंपनी का जो रिटायरमेंट प्लान है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनी वो थोड़ा सा बेटर। वही अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ में जाके देखिए अभी भी, तो प्राइवेट कंपनीज़ में रिटायरमेंट बेनिफिट्स कम मिलते हैं, प्रेजेंट बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, बट इन द गवर्नमेंट कंपनीज़ यू कैन फील दैट कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट बेनिफिट। तो हम फ्यूचर के बारे में सोचें तो हम गवर्नमेंट जॉब को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बिकॉज इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। अगर हम और डीप एनालिसिस करें रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, तो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉय टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एज वेल एज टू रिड्यूस द एब्सेंटिज्म। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म तब एम्प्लॉयज़ कम करेगा, फिजिकली से प्रेजेंट नहीं रहेगा, मेंटली भी रहेगा, क्योंकि नो वेरी वेल कि आपको यहीं रहना है रिटायरमेंट तक। लेबर टर्नओवर कम किया क्योंकि लोगों को पता है कि इस कंपनी में अगर जुड़े रहेंगे तो हमें रिटायरमेंट के टाइम अच्छा पैसा मिलेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो यू नो वेरी वेल देयर सच काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अ परक्यूजिट। व्हाट इज़ परक्यूजिट? जनरली परक्यूजिट वर्ड को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है। देखिए, अलाउंसेस एंड पे से अलग होता है परक्यूजिट्स। व्हाट इज़ परक्यूजिट? परक्यूजिट मीन्स फ्रिंज बेनिफिट्स, नॉन monetary benefits, but it can be measured in the monetary terms. You know very well, most of the company, apart from basic salary, some companies after fringe benefits and perquisite to employees, that is perks like rent free accommodation, education of children, medical allowances, car allowances, etc to motivate their staff. You know very well कि आप बड़े बड़ी कंपनीज़ में जाइए या छोटे मोटी इस कंपनी में जाइए, अपनी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए या अपने साथ जुड़े रखने के लिए। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है। मोटिवेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम आपको अंदर से मोटिवेट करें काम अच्छे से करें, बल्कि कुछ और भी बेसिक रीज़न होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, जैसे एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर। तो मोटिवेशन का मेन फोकस ये होता है कि वाइल वी आर वर्किंग एनी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हमने स्टाफिंग करके मेहनत करके इतना मैन पावर अरेंज किया, पता चला बीच में ही छोड़ के चला गया, तो स्टाफिंग तक तो वो हमारे पास था क्योंकि हमने अच्छे से उसको रखा है। डायरेक्शन में आया वो छोड़ के चला गया, इसका मतलब है कि हम उसको प्रॉपरली मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। वो पागल थोड़ी ना है, कोई एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो वो हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, इतना मेहनत करके वो सेलेक्ट होकर आया है आउट ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, आउट ऑफ 1000 एप्लीकेंट्स। सो वो ऐसे जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण वो जॉब छोड़ के जाएगा, तो उसे बेटर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो इन द डायरेक्टिंग प्रोसेस हमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है, उसे मोटिवेट करते रहना ज़रूरी है, ताकि अभी तक जो मैंने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की है, वो वेस्ट ना हो। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर और द personnel of the directing process to motivate them for the motivate to their employees by the organization provides some kind of perquisites मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी रहने को घर दे दिया, स्टाफ दे दिया, देखें स्टाफ क्वार्टर दे दिया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल में दे दिया। जैसे अगर हम बड़ी कंपनी की बात करते हैं, आदित्य बिरला कंपनी, तो इफ़ यू आर वर्किंग इन आदित्य बिरला कंपनी, तो आदित्य बिरला कंपनी प्रोवाइड यू अ क्वार्टर मीन्स द स्टाफ रूम,
अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। अगर आप सुपरवाइजर लेवल में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको घर मिलेगा, मिडिल लेवल में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको घर मिलेगा, यानी आपको फ्लैट मिलेगा रहने के लिए। सेकंड, आदित्य बिरला के उस लोकेलिटी में स्कूल भी चलते हैं, तो वहाँ पे आपके बच्चों के पढ़ने के लिए नॉमिनल फ़ीस पे या फ्री फीस पे आपको पढ़ाने की वो मिलेगा, ऑफ़र मिलेगा। सो इट इज़ सच काइंड ऑफ परक्यूजिट्स। मेडिकल अलाउंसेस, आदित्य बिरला के कुछ डिस्पेंसरीज भी होंगे आसपास। कार अलाउंसेस, ऑफिस में आने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए आपको क्या करना, कार प्रोवाइड करेंगे, बाइक प्रोवाइड करेंगे। तो सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ टू मोटिवेट देम ना। अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंपनी के साथ जुड़े रहें। कंपनी उनको इतनी बेनिफिट दे रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ आप कंपनी के साथ सिक्योर महसूस करिए, कंपनी के साथ काम करिए और मन लगा के काम करिए। सो these 7 types of the financial incentive given by the organization which helps to motivate their employees. The first one is pay and allowances, second one is a productivity linked wage incentive, third one is bonus, fourth one is a profit sharing, fifth one is a co-partnership in a stock option, sixth one is a retirement benefit, and 7 is a perquisites. Now we will move to the non-financial incentive. Non-financial incentive means what? You know the famous line, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। Okay, but the money is not applicable in everywhere. हम पैसे से सब कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। When we are talking about the psychological factors, social factor and emotional factor, ये काफ़ी चीज़ें भी एम्प्लॉयज़ के माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको हम रहने को 5 स्टार होटल का कमरा दे दें, उसको प्रॉपर कार दे दें, बट अगर वो ऑफिस में जब जॉब करने काम करने आ रहा है तो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ है, उसका सुपीरियर उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, या वो इतने मेहनत से अच्छा काम कर रहा है, इतना सा फैसिलिटी दी, लेकिन हम थोड़ा सा उसका अप्रिशिएशन नहीं कर पा रहे हैं। या कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ है जो 4 साल से खूब मेहनत कर रहा है मिडिल लेवल पे, उसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है इन द फाइनेंशियल इंसेंटिव, बट उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसका अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मोटिवेट हो पाएगा? नहीं। कभी कभी when we are talking about the Maslow need hierarchy theory in the previous video, so there are such kind of esteem needs and self actualization needs. You know very well, after the acquiring the social needs, a person wants respect, self respect as compared to the money. And I was giving you an example कि अगर मान लीजिए कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं, उससे कहते हैं 5,000 रुपये देंगे आपको, तो यार उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है आपकी, उससे चाहिए कि वो आपकी जगह पे आएगा, एज अ गेस्ट लेक्चर देगा, वो देगा, खुशी होकर देगा, वो फ्री में दे के जाएगा, बट आप उसके साथ स्टेटस अच्छा रखें, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको ट्रीट अच्छा करिए, उसका फेयरवेल अच्छे से करिए, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो सच काइंड ऑफ की सोशल नीड पे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं या फिर स्ट्रीम नीड्स पे या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे, तो दे आर नॉट प्रेफर्ड financial needs, they preferred non-financial incentive. You know, read it, the psychological, social and emotional factor also play an important role in motivating employees. The incentive which are provided to satisfy these needs are termed as non-financial incentive. Some of the important non-financial incentive are listed below. The first one is status. What is status? In business terms, status means ranking of position in the organization. The authority, responsibility, rewards, recognition, perquisite and prestige of the job indicate the status given to a person holding a managerial position. Yes, स्टेटस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नो वेरी वेल, कि अगर हम किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं तो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही देते हैं। सो स्टेटस भी एक तरह का एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है, मोटिवेट करता है टू परफॉर्म देयर जॉब efficiently and effectiveness. The second one is organizational climate. Before condition is an organization like individual autonomy, reward orientation, consideration to employees, risk taking,
बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर हेल्प्स टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ. अगर हम किस एम्प्लॉयज़ में एक ऐसा चेंजेस लेकर आए, क्लाइमेट लेकर आए कि उनको हम कोई काम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो काम खुद से कर लेकर आए. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हेल्प्स टू कीप. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के रिलेशन को स्टडी करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स are the characteristics which describe the organization and the relation between superior and subordinates. With the help of organizational climates, we influence directly the behavior of a member of organization. A positive approach adopted by manager creates better organizational climate, whereas a negative approach may spoil the climate. Employees are also motivated in the healthy organizational climate. It means एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए परसेप्शन को भी बेटर रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट और उसके वर्कर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की जो पॉजिटिविटी है वो हेल्प करती है ताकि हम अच्छा सा अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकें. यानी सिंपली वे में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब बेसिकली ये होता है रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा सो वो दोनों उसको मोटिवेट करेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये शायद रिलेशनशिप तो वॉइड करेगा, एज वेल एज एम्प्लॉयज़ में कई सारी तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. If any organization provides a different opportunity to their employees in their career, so employees always motivated because employees are provided opportunity to grow in status and responsibility. They are satisfied and are committed to organizational goal. Appropriate skill development programs and sound promotion policy help employees to exhibit improved performance. The next one is job enrichment. Job enrichment is a very common and very popular incentive which are provided by the organization to their employees for their motivation. Because job enrichment means it is concerned with designing of jobs that include greater variety of work content requiring high level of knowledge and skill. This provide opportunity for growth and development of employees on one hand and more autonomy and responsibility on the other, which becomes a source of motivation to the individual. Because employees get bored by performing routine job, they enjoy doing job which offer them variety and opportunity to show their skill. बार बार एक ही काम करने से आप बोर हो जाते हैं. सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको वेराइटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने स्किल को दिखा सकें. ताकि उनको हम थोड़ा अलग काम देंगे तो दे बिकम more interested to perform such kind of job. So the next incentive, non-financial incentive, that's an employee recognition program. This example is also given by me in the previous video कि suppose बड़े बड़े कंपनीज़ में अगर आप देखिए तो वहाँ पे एक टाइटल होता है. टाइटल इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. एक बोर्ड बनाया जाता है नोटिस बोर्ड की तरह कि उस महीने में या उस वीक में जो एम्प्लॉय सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको एक फ़ोटो उसकी लगा दी जाती है, उसके नाम बताए जाते हैं और उसका एप्रिसिएशन मिलता है. तो रिकॉग्नाइजेशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ वर्क विथ अ शो एप्रिसिएशन विच सच एप्रिसिएशन एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड. एंड हाउ कैन वी motivate their employees with the employees recognition program? It can be done in the following ways. The first one is congratulating an employees for his or her good performance. उन्हें सबके सामने congratulate करना, उनके लिए clapping करना.
The second one is display on notice board or newsletter of the companies about the achievement of the employees. एम्प्लॉयज़ के बारे में जो उसने अचीवमेंट किया है, जो हमारी एनुअल बुकलेट छपती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उसका जगह देना या नोटिस बोर्ड पे उसको दे देना. गिविंग अवार्ड सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस. Number fourth is distributing mementos, complimentaries like T-shirt, caps and bags. So ये जनरली ट्रेंड्स में है कि हम एक अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी नॉन इंसेंटिव के रूप में गिफ्ट दे देते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. एंड एज वेल एज रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय गिविंग वैल्यूएबल सजेशन. और कभी कभी हम अपने एम्प्लॉयज़ को उसके सजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसको रिवॉर्ड भी देते हैं. तो सच काइंड ऑफ थिंग कैटेगराइज इन द एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट which satisfy the ego of the subordinates, because ego satisfaction is a very good motivator. Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinates, then it must be recognized by the superior in public or in presence of other employees. Whenever if there is any negative attitude or mistake is done by subordinate, then it should be discussed in private by calling the employee in cabin. Okay, the next one is job security. It ensures stability of income and work, which motivate an individual to work with the great zeal. However, it has one negative aspect, that is, it makes individual feel that they are not likely to lose their jobs and hence may become compliant and careless. आप ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बिकॉज यू नो कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ को पता है कि उसकी जॉब सिक्योर नहीं है तो वो मन से वहाँ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे कब ना कब निकाल दिया जाए जॉब से. देखिए, इसका दो इफ़ेक्ट है. या तो वो मन लगा काम करेगा ताकि परमानेंट हो जाए, उसको जॉब सिक्योर्ड हो जाए, या तो वो हमेशा उसके मन में इस बात का डर रहेगा कि भैया कहीं छोटी सी गलती हुई उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाएगा. उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी. सो वो कोई भी काम करेगा तो केयरफुली तो करेगा, बट मिस्टेक तो सबसे हो सकती है. सो वो हमेशा ट्राई करेगा इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन की वो कहीं और जॉब ढूंढे, और वो हमेशा नए जॉब के ढूंढने के चक्कर में और वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा. सो जॉब सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़. द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. दिस नॉन इंसेंटिव टेक्निक्स ऑल्सो गिवन बाय द हेनरी फ्यूल, दैट इज स्प्लिट द क्रॉप्स, आई रिप्लेस विथ वी. ओके, एन इनिशिएटिव कि we could welcome the suggestion given by the subordinates. So it is employee participation means involving employees in decision making regarding the issues related to them through work committees, canteen committees. means नॉन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपने सबॉर्डिनेट से भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना और कहना कि यार बताओ इसका सजेशन क्या होगा. उनको भी लगेगा ना कि दे आर द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही कुड मोटिवेट. And the last non-financial motivator, that is employees empowerment. It means giving more autonomy and power to subordinates. It makes people feel that their job are important, as a result of which they contribute positively to use of skill and talents in the job performance. Employees का empowerment होना चाहिए, unity होनी चाहिए, हमें उन्हें autonomy दें, पावर्स दें सबॉर्डिनेट्स को, ताकि वो अपने काम को ईजिली परफॉर्म कर सकें. जैसे अगर हम कोई काम करा रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, उसको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी नहीं दी है, किसी भी रीज़न से टॉप लेवल ने नहीं दिया है या उसके सुपीरियर ने नहीं दिया है, तो वो हमेशा अपने आप को एक कहते हैं ना, उसको एक वर्ड याद आ रहा है, कहते हैं ना कि बहुत अपने आप को इन्फीरियर महसूस करेगा. येस, दे फील इन्फीरियर हिमसेल्फ. सो वो उस काम को बहुत बेस्ट कैपेबिलिटी से नहीं करेगा. लेकिन अगर हम उसी काम को उसको खुला छोड़ दें तो या तो बहुत लॉस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं, लेकिन हाँ एडिक्वेट फ्रीडम, एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एम्पावर समझे और अपने स्किल को अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके और कंपनी इसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सके. सो वी डिस्कस द 8 important non-financial incentive, that is status, organizational climates, careers advancement opportunities, job enrichment, employee recognition program, job security, employee participation and employee empowerment. Okay,
So today we will discuss the financial and non-financial incentive given by the company to their employee to motivate them. If you have any kind of suggestion or doubt regarding this topic, so please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.